14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ रिकॉर्डिंगा करा के ते मुंडा मार दिता। मैनू ये नहीं पता सी इन्हें जुल्म इन्ना कर जाना। हम मौके पर पहुंचते हैं तो एक हवेली में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी होती है, उसकी ब्लीडिंग हो रही होती। तो जाके जब मौके पे देखते हैं उसके अजीज़ो कार बैठे होते हैं तो कह रहे हैं कि हम सारे आपस में बैठ के बातें कर रहे थे तो इसका बड़ा भाई पीछे से आया है, उसने सर के पीछे से पिस्टल रख के फायर किया है। जो फायर पीछे से लगा और उसकी आंख के करीब से बाहर से आगे से निकला। कि ये दोनों भाइयों को आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था कुछ माह से। जो कातिल है वो कह रहा था कि ये जिसे उसने कत्ल किया है कि इसका मेरी बीवी के साथ कोई नाजायज संबंध था। तू इंदे नाल खराब है, तू इंदे इंज वे नहीं, मैं तेरे मुंह ते तेजाब रोड़ दियांगा, तेरा नक वड़ दियांगा, तेनू तलाक दे दियांगा। मैनू उन्हें बड़ियां टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा। मैं फिर भी गुजारा करदी रही, मैं कोई गल कहंदा मैनू तवीत पाए ने काले इलम दे, तेनू अपने लिए कीता गया वे, फिर तू मैनू तवीत पाए ने। ये सब झूठ है। इथों दा बाबा हैगा वे, उनका खाना खराब हो जाता, कख ना रही। उन्हें तेरे भरा ने तवीत पाए ने, सब बंदे ने झूठ बोलिया, कोई गल कोई नहीं हैगी। बस ये चीज़ें ऐसी जौन सी ने बच्चों को राशन देना, इनके घर जाना, तो वो चीज़ें उसे अच्छी नहीं थी लगती। हालांकि बकौल उसकी वालदा के मकतूल की, वो कहती हैं कि वो मुझे पैसे देता था कि आप चोरी दे आओ, कोई मेरे पे शक ना हो या मसला ना हो। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं कातिल भाई जिसने अपने छोटे भाई को कत्ल किया, उनकी ये जोजा हैं, बीवी हैं। ये बताइएगा कि ये झगड़ा कब से शुरू हो गया, कब से शोहर ये इल्ज़ाम लगा रहा था आप पे कि आपके गलत ताल्लुकात अपने ही देवर के साथ? 14 साल हो गए ने मेरी शादी ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਇਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਾਲੁਕਾਤ? ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਲਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਬਾਹਰ। और इन्हें जोगा नहीं सी, इन्हें बड़ा गलत काम किया। बच्चे मार के सारी जिंदगी नहीं, अल्लाह ताला भी इन्होंने माफ़ करेगा तो मैं भी नहीं करांगी। साडा कोई तलक इहो जिहा नहीं सी हैगा। पूरे पिंड नूं पुछ के वेख लो, मेरिया सारे शाता, मैं कुरान 2 जनां दा वाली भी चुक्या, 70 वारी चुक्या, अपने बेटे दे भी सिर ते हत्थ रखी कि मेरा इहो जिहा कोई नहीं, जिस दिन वेखेगा उस दिन तेनों इजाजत है मैनूं मार देवी। लेकिन वो किसी गल नूं ना मन्निया ने। वाशरूम जाना, मेरे नाल जाना के फोन करदी लुक लुक। मोबाइल ने सारी दिहाड़ी पेटियां फरोलियां, मोबाइल रखिया तू। मैं कसमां चुकनियां, हद्दां सुनी, मेरे को कोई मोबाइल नहीं, मेरे माँ बाप भी छड़ा दित्ते ने, कोई राबता मेरा किसी नाल नहीं हैगा। मैनूं अपने भैणां भरावां दा नंबर याद नहीं हैगा, मैनूं किसी दा कदा आउणा बंदा मेरा, मैनूं उनदा नंबर याद नहीं हैगा। लेकिन बंदे ने मेरी एक ना सुनी, मैनूं नहीं सी पता एडा जुल्म कर जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ? है जी 7 कुछ साल दा हैगा सी, 8 साल। 7 साल का था जी इनका देवर। और ये भाभी बता रही हैं कि बच्चों की तरह पाला है इन्होंने उसको। शुरू से तो शकी कर साडी लव मैरिज हुई है, लेकिन शुरू तो लव मैरिज हुई है। मैं भैणा भरा सारा कुछ इहदे पिछे छड्डिया वे।
ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੱਡਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਇੰਜ ਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਰੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। अब ये कैसा शोर है जी? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਨੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਵੀਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਲੀ ਪੀ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਪੀਰ। ये कौन है? ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਹੱਥ ਬੋਤਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇੰਜੇ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇੰਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵੰਦ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? नहीं वो तो करता सी, आइस पी लेंदा सी, चरस वगैरह, सादा सिगरेट। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया वाजिदाबाद, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से जिसमें एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बड़े जालमाना तरीके से कत्ल कर दिया। जी वाह साहब बताइएगा, सारा जब आपको इतला मिलती है उस वक्त क्या हालात है जब जैब को आप पहुँचते हैं और ये मामला क्या है असल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त को तकरीबन 3:30 बजे के करीब हमें इतला मसूल होती है कि एक भाई ने अपने भाई को बजरिया फायर कत्ल कर दिया है। हम मौके पर पहुंचते हैं तो एक हवेली में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी होती है, उसकी ब्लीडिंग हो रही होती। तो जाके जब मौके पे देखते हैं उसके अजीज़ो कार बैठे होते हैं, तो कह रहे हैं कि हम सारे आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, तो इसका बड़ा भाई पीछे से आया है, उसने सर के पीछे से पिस्टल रख के फायर किया है। जो फायर पीछे से लगा और उसकी आंख के करीब से बाहर से आगे से निकला, जिससे वो मौके से फरार हो गया। 2-3 उसने फायर किए क्योंकि उसे पकड़े ना, वो वहाँ से निकल गया। जब मौके पे जाके देखा, क्राइम सीन टीमें आ गई, आगे से हमने अपने शवाहद वगैरह इकट्ठे करने शुरू किए। आपको पता जिस तरह इस घर में वाक़या हो, फिर उस वक़्त उनके लोहाकीन क्या क्या जो उन पर गुजर रही होती, जो मौके पे वहाँ से उनके रिश्तेदारों से या उनके अजीज़ों कारब लोहाकीन से जो हमें बातें पता चली कि ये दोनों भाइयों को आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था कुछ माह से। जो कातिल है वो कह रहा था कि ये जिसे उसने कत्ल किया है कि इसका मेरी बीवी के साथ को नाजायज़ संबंध था। यानी बड़ा भाई कह रहा था छोटे भाई के उसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात था। हालांकि उसकी जो मिसेस थी वो कह रही थी मेरे बेटों जैसा था। फिर इसकी बाबत इनकी को आपस में को मस्जिद में जाके कसम नया वगैरह भी हुआ, उसने अपनी सफाइयाँ भी दी छोटे भाई ने। मगर जो बड़ा था वो एडिक्टेड था, वो आइस के नशे में, उसके घर वाले बताते हैं। उसकी अपनी 5 बेटियां और 1 बेटा है कातिल का। तो उसकी बीवी भी कह रही थी कि मैंने इसे बेटों की तरह पाला है, हमारा ऐसा कोई तल्लक नहीं, मगर मेरा खामद मुझ पे बेजा शक करता था, मुख्तलिफ मेरे साथ भी मारपीट करता था। मगर वो जिस तरह एडिक्टेड पर्सन आप कह सकते हैं कि जो उसके दिमाग में चल रही होती है वो ही जान। मगर ये किसी रिश्तेदार को, किसी उसके बहन भाई को नहीं था पता कि ये बंदा उसकी जान ले लेगा। अच्छा, एक और चीज़ उसकी बीवी ने हमें बताई है, कातिल की बीवी ने, और कातिल की बेटी ने भी हमें बताया। वो कहती है जी कि इसने गन पॉइंट पे हमारे से वीडियोस बनवाई हैं, इसके पास वीडियोस हैं जिसमें हमसे बयान दिलवाया है जी कि मेरा भाभी के देवर के गलत ताल्लुकात हैं और ये सारे मामला। वो कहती है 100% उसने हमें मार के और जाली बयान आते, तो उसकी बिना पर कहीं वो बाहर ना आ जाए। उनको ये डर है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल किया तो छूट के बाहर आ जाएगा। नहीं, उसमें ऐसा ना, जिस तरह ये कत्ल करके भागा है तो हमने चंद ही घंटों में इसे राउंड अप कर लिया, किसी जगह पे छुपे बैठा हुआ था। मगर जब हमने इसे गिरफ्तार किया, इससे आला कत्ल पिस्टल जो लोडेड था जिसमें 10-20 अभी राउंड है थे अभी, वो हमने इसके कब्जे से लिए। कोई मोबाइल, कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली इससे कि जिससे हम कुछ चीज़ देख सकते हैं या आगे लेके मज़ीद। तो हो सकता है कि आगे इस चीज़ को वो वजह बनाए या आपको कहे जी मेरे पास वीडियोस हैं, तो उस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी बीवी ने बता दी कि जो वीडियोस उसने नहीं बिल्कुल गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती रिकॉर्ड करवाई हैं। एक और चीज़ है जो कंसर्न है लोहाकीन का, वो कह रहे हैं कि ये धमकियाँ, सारा कोई आता है तो किसी को इसने धमकी दी है जी मैं बाहर आऊँगा 3 को कत्ल करूँगा, मैंने छूट के आ जाना है क्योंकि मेरे पास वीडियो बयान है और मैं तो बच के आ जाऊँगा। तो इस हवाले से ज़रा बता दें कि जो लोहाकीन है बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि वो जो माँ है जिसका एक बेटा तो मर गया, बेटे नहीं मारा लेकिन एक नाफरमान बेटे ने, फरमाबरदार बेटा उसका मार दिया, और बाकियों के पीछे है। सर भाई अब इस तरह के कत्ल एक इंसानी जान का हो, इसने किया,
अब उसमें बड़ी क्यास रही होती हैं कि ये हो जाएगा वो, मगर हम इंशाल्लाह कानून के मुताबिक इसका केस सारे अच्छे तरीके से देखेंगे, ठोस शवाहद हर चीज़ देखेंगे, सारी चीज़ें देख के मुकम्मल चालान करेंगे इसे और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे।